Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Insight. My name is Harjit Kumar. As you all know, as promised, I come up with a new video series where you will get to solve 10,000 MCQs for the whole physics and 300 MCQs you will get in each chapters. And this video series will definitely help the NEET and JEE students to achieve their goal. And secondly, it will improve your numerical solving ability. Before starting the session, I want to say something that my plan was to make the video in Assamese language or local language, but most of the students request me to make the video in Hindi and English. So I am making that one. If in future number of students increased and request me to make the video in Assamese, then definitely I'll make that one. Okay, without wasting our time, let's start the session. Okay, let's go. Okay, the first question, let me change the color of the pen. Okay. The first question we have, if a car at rest accelerates uniformly and attain a speed of 72 km per hour in 10 seconds. That means, if first of all it is given that given car is at rest, that means u equal to initial velocity of the car is what? 0, and attains a acceleration, that means acceleration was not given to you, but acceleration will be constant, and final velocity attained by the car is 72 km per hour. Now you have to think that there is a car, the initially it is at rest, and after 10 seconds, one information was also given, that means 10-second time, it attains a velocity 72 km per hour. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. ओके, और तुमको निकालना क्या है? डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है. और देखो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का आंसर कितना में, मीटर में है, तो हम लोग को वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर पर आवर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो कितना होगा? 72 into 1 kilometer is what? 1000 meter, and 1 hour is your 360000 second. After calculation you will get 20 meter per second. 20 meter per second. Okay, now you can apply equation of motion. That means v equal to u plus at. From here you can calculate acceleration. Velocity equal to final velocity equal to 20. U is your 10. Acceleration you need to find out. Acceleration, your final acceleration will be 2 meter per second square. Acceleration equal to 2 meter per second square. Okay, we got that one. Now another equation of motion you need to apply is that v square equal to u square plus twice as. V equal to 20 square, 0 square, 2 into 2 into s, 400, 4s. Okay, 100 meter is the answer. S equal to 100 meter is the answer. Okay, let's move to the second question. This is a very easy question. Okay, second question we have, a body moves along the curved path of a quarter circle. You need to draw the quarter circle, but before that draw a circle. You have to, the body need to go from A to B, position A to B, quarter circle. This is the quarter circle means your 1/4 of the circle. Quarter circle, this distance will be radius. Okay, your question is ratio of distance to the displacement. Okay, distance divided by displacement. Okay, let's find out displacement. What is displacement? What do you mean by displacement? It is the shortest path between the initial and the final point.
That means shortest distance between A and B. Let's connect the point A and B, and this is our what? This is our displacement. Displacement will be your here. Displacement will be your here. It is given R and AB length. How will calculate? We can calculate it with Pythagoras theorem. Okay, R square. Question mark will be your 2R square question mark equal to √2 into R. डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना √2 इंटू आर. डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का जो सार्कमफ्रेंस से होके जाएगा यार, वही तो है. ए से लेके बी तक हम लोग को जाना है. कैसे? सार्कमफ्रेंस से होके जाना है. पूरा सर्कल का सार्कमफ्रेंस कितना है? सर्कल का सार्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर, राइट. और ये तो क्वार्टर सर्कल हो गया तुम्हारा. क्वार्टर सर्कल मतलब कितना? इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बी इक्वल टू योर 1/4 ऑफ 2 पाई आर. यही वाला सर्कमफ्रेंस क्या है हम लोग का? डिस्टेंस नहीं है, यही तो डिस्टेंस है. इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाई 2. नाउ पुट distance and displacement here. Distance is your pi r by 2 and displacement is √2 into r. R cancel out. Pi divided by 2 √2. Pi equal to 22/7. As we all know, this is very basic यार. This is very basic. 11 divided by 7 √2 is your final answer. 3 is your answer. Okay, let's go. इधर में क्या दिया हुआ है? 3 particles P, Q and R are situated at a point A on the circular path of radius 10 meter. All the particles moves along different paths and reach the point B, and then the ratio of the distance traversed by A, P and Q. मतलब इधर में है P पॉइंट और हम लोग को जाना कहाँ है? B पॉइंट तक जाना है. और Q कहाँ है? All these particles move along the different P point. Okay. Ratio of distance traversed by particle P and Q. Okay. From here, A position, 3 particle move from point A. P is along the circumference of the circle to B, and Q start from here. वो उसके बाद Q सेंटर को जाएगा, उसके बाद सेंटर से नीचे आके B को लगेगा. ठीक है, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय P इक्वल टू क्या होगा? ये तो P के कितना मूव किया है? सर्कमफरेंस से मूव करेगा ना. सर्कल का सर्कमफरेंस कितना है? सर्कल का सर्कमफरेंस है 2 पाई आर. वो कितना पार्ट मूव किया? 1/3/4 मूव किया ना. लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम ही है ये. 3/4 कितना? ये पहला पोर्शन गया, इसको गंदा नहीं करते हम लोग. कहाँ से गया वो? P इधर से स्टार्ट होके घूम के इधर तक आया ना. तो कितना हो गया? ये दिखने में तो पता लग रहा है 3/4 पोर्शन है. तो इंटू 3/4, 2 कैंसिल आउट, 3 पाई आर divided by 2, and distance traversed by Q इक्वल टू. अच्छा देखो Q क्या हो रहा है? Q कैसे जा रहा है सर्कल में? सीधा गया R डिस्टेंस और नीचे आया कितना? R डिस्टेंस. तो कितना होगा? 2R. सिंपल है. डिस्टेंस बोला है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला. तो हम लोग को कन्वर्ट क्या करना है? रेशियो निकालना है ना. रेशियो निकालने से कितना होगा? रेशियो हम लोग का आएगा 3
पाई आर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2r, आर कैंसिल, कितना आया हम लोग का 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, दैट मीन्स 3 पाई डिवाइडेड बाई 4 इज योर फाइनल आंसर। ठीक, इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस में तुम लोग को फंसाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या बोला है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, तो डिस्टेंस कितना है हम लोग को पूछ रहा है कि नहीं। अच्छा देखो, कोई भी चीज का डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो तो मान लेते हैं, उसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, सपोज मान लो तुम एक सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट से उस घूम के उस सर्कल का अगर सेम पॉइंट में हम लोग आके रुक जाए, ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक आके फिर से हम लोग ए पॉइंट में सेटल डाउन करें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, जीरो, राइट। लेकिन इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो सारकमफ्रेंस से होके वो पूरा पार्ट कवर किया कि नहीं, वो खुद देखो एक बार, कितना कवर किया, पूरा होल पार्ट कवर किया ना, मतलब सारकमफ्रेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना हो गया हम लोग का, 2 पाई नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड कितना, मास भी जीरो, मे और मे नॉट भी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल, मे और मे नॉट भी जीरो, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैंडेटरी थोड़े ना है। अभी तो निकल गया कितना हम लोग का, 2 पाई निकल गया, कभी कभी ऐसा केस भी हो सकता है कि कभी जीरो भी निकल सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हो सकता है कभी कभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट, ये पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को ये याद रखना कि मास दिया है, मे भी दिया है, मास में ये सब में तुम लोग को फंसा देगा, ठीक है, ये सब में तुम लोग को फंसा देगा, ये दोनों सेंटेंस में। तो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, बायोलॉजी में भी फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ना है। क्या दिया, डिस्टेंस इज जीरो, डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस जीरो है मतलब क्या, वो मूव ही नहीं किया, डिस्टेंस अगर जीरो हुआ वो मूव किया क्या, वो तो रेस्ट में ही रह गया ना पार्टिकल, है कि नहीं, वो इधर गया ना इधर गया, वो डिस्टेंस अगर जीरो हो गया, डिस्टेंस अगर जीरो है तो वो जहाँ पे है वहां पे ही रह गया ना, डिस्टेंस तो कवर ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी जीरो, सिंपल सा केस है यार, मस्ट भी जीरो, मतलब डिस्टेंस अगर गया ही नहीं है तो वो जहाँ पे है उधर में ही रहा, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना, सिंपल सा बात है ये। समझ में आया किसी सबको, अगर नहीं आया तो कमेंट डाउन करना मुझे। अच्छा, और क्या दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज, what can we say about the displacement and distance covered by the particle, both cannot be zero, one of the two may be zero, both must be zero, and if one is positive other is negative and vice versa, location of a particle is changed, सपोज मान लो लोकेशन एक पार्टिकल का ये है और ये है उसका अनदर लोकेशन, तो मतलब लोकेशन ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल है पी, उसका लोकेशन हम लोग ए से लेके जाके बी में रख दिया, व्हाट कैन वी से अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, बोथ कैनॉट बी जीरो। अच्छा देखो, पोजीशन अगर चेंज किया है तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही आएगा, अगर सेम पोजीशन में रह गया, मतलब ये अगर ए घूम के आके अगर फिर से ए में रह गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना, तो पोजीशन तो सेम नहीं रहा, इस केस में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, वो तो अनदर पोजीशन में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही, सिंपल सा बात है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। और बोथ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, अरे भाई डिस्टेंस भी तो कवर करेगा ये, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बोथ मस्ट बी, बोथ कैन नॉट बी जीरो, ओके सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन आंसर वन, वन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट डाउन करना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। एन एथलीट completes a one round of a circular track of radius r in 20 seconds, what will be the displacement at the end of the 20 minutes, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, हम लोग का रहता है ना मैराथन में, तो वो एथलीट है, एथलीट इस पॉइंट से स्टार्ट किया, और पूरा ट्रैक मान लो एक्स पॉइंट से स्टार्ट किया, और पूरा ट्रैक घूमने के बाद, पूरा ट्रैक घूम लिया उसने,
घूमने के बाद फिर से एक्स पॉइंट में आया, मतलब कितना, एक राउंड कंप्लीट किया। तो 1 राउंड में हम लोग का कितना लगता है, 20 सेकेंड लगता है कि नहीं, 20 सेकेंड एक राउंड कंप्लीट होने के लिए। मतलब 20 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकेंड कितना है, 0, क्योंकि 20 सेकेंड के बाद तो वो एक्स पॉइंट से निकला था, फिर से एक्स पॉइंट में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो ही गया है, तो सिंपल सा बात है। अभी हम लोग को पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखते हैं पहले। 20 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब कितना, 122 इंटू 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड एडिशनल है, तो कितना आ गया, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 140 सेकेंड में हम लोग का कितना होगा, देखते हैं। ठीक है, ओके देखो इधर में फर्स्ट ए पॉइंट से, एक्स पॉइंट से स्टार्ट किया, एक्स पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद एक कंप्लीट राउंड घुमा, कितना सेकेंड लगा, एक राउंड कंप्लीट होने में 20 सेकेंड, यहाँ इसका 20 सेकेंड खा गया। ठीक है, 140 सेकेंड में से 20 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हम लोगों ने खा लिया। अभी कितना हो गया उसका, रुको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। 20 सेकेंड 140 सेकेंड ना, ओके, ये इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन भी देखो कॉन्सेप्ट देखो, लॉजिक देखो तुम पहले। 140 सेकेंड में से हम लोग का 20 सेकेंड चला गया, कितना, 1 राउंड कंप्लीट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ठीक है, कितना रहा, 120। ऐसे कर करके भी देख सकते हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है, ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ये हम लोगों को तो पता ही लग गया ना, 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो पहला 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सेकेंड 20 सेकेंड में फिर से स्टार्ट किया 0, फिर से 20 सेकेंड 0, फिर से 20 सेकेंड 0, कितना हो गया, 20 40 60 80, फिर से 20 सेकेंड कितना, 0, फिर से 20 सेकेंड 0, कितना हो गया, 20 40 60 80 100 120, और फिर से 20 सेकेंड, और कितना हो गया, 0, सीधा सीधी आंसर है तुम्हारा 0, इतना तो दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ठीक है, योर फाइनल आंसर इज 0। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट डाउन करना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग का, ए मैन वॉक्स फॉर सम टाइम टी विथ ए वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट। ईस्ट, अभी देखो ये हम लोग को जानना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट की तरफ हम लोग का जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ हम लोग को मूव करना है पहले विद वेलोसिटी v, देन ही वॉक्स फॉर सम टाइम t विद वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चला गया विद वेलोसिटी v इंटू डी। हम लोग को निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैन, फाइनल वेलोसिटी। उसके पहले तुमको देखना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, ये कितना डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम नहीं होता, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, v इंटू टी, नॉर्थ की ईस्ट की तरफ, और ऊपर की तरफ हम लोग का कितना, v इंटू टी। तो फाइनली हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम नहीं होता, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। टाइम कितना है, टाइम तो 2t है, ये तो सिंपल सा है, क्योंकि ईस्ट की तरफ जाने के लिए उसको t टाइम लगा और नॉर्थ की तरफ लगा और t, तो कितना है, 2t। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये यही होगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। ये आया था, ये v इंटू टी क्या है हम लोग का, ये डिस्टेंस है, ये v इंटू टी हम लोग का क्या है, डिस्टेंस। तो ये हम लोग का ये क्वेश्चन मार्क हम लोग पाइथागोरस से नहीं निकाल पाएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क होल स्क्वायर इक्वल टू वी टी होल स्क्वायर प्लस वी टी होल स्क्वायर, कितना आया, क्वेश्चन मार्क होल स्क्वायर इक्वल टू 2 वी टी होल स्क्वायर। तो फाइनली हम लोग का आया क्वेश्चन मार्क इक्वल टू
√2 इंटू वी इंटू टी, पुट कर दो इधर में, √2 इंटू वी इंटू टी, टी कैंसिल आउट, तो वी डिवाइडेड बाई √2 पुट कर दो, काम खत्म, आंसर 4। अच्छा ये कैसे आया, किसी को अगर जानना है कि ये कैसे आया, हम लोग का होता है and 2 इक्वल टू √2 इंटू √2 लिख सकते हैं हम लोग, तो वहां से आया है ये, ठीक है। ये सिंपल सा चीज है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, इसको समझना, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है, ए ड्रंकेन मैन वॉकिंग अलोंग दी straight line, he takes 5 steps forward and 3 steps backward and followed by 5 steps forward and 3 steps backward and so on। मतलब वो 5 स्टेप आगे की तरफ जाता है और उसके बाद, वो तो दारू पी के रखा है ना, ड्रंकेन पर्सन नहीं बोला क्या, वो 5 स्टेप आगे जाता है, उसके बाद 3 स्टेप पीछे आता है, तो उसके बाद कितना स्टेप रहा, मतलब 2 स्टेप मूव किया ना उसने। ऐसे सो ऑन कैरी होके होके जाएगा, कब तक, जब तक 11 मीटर्स में उसका एक क्या है, एक पीट हॉल है, मतलब गड्ढा है, उधर में बोट गिर जाएगा। तो कितना टाइम लगा वो गड्ढा में घुसने के लिए या तो गड्ढा में गिरने के लिए, ठीक है। अच्छा देखो, पहले हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप गया। अच्छा एक स्टेप में 1 स्टेप, ये याद रखना, इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब कितना गया वो, 5 स्टेप गया, 5 स्टेप गया और 3 स्टेप बैकवर्ड आ गया, तो वो कहाँ पे है अब, 3 स्टेप। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है कि ए ड्रंकेड इज वॉकिंग, मतलब एक दारू पीने वाला आदमी, वो वॉक कर रहा है एक स्ट्रेट रोड में, 5 स्टेप, वो ही टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, इसका मतलब वो 5 स्टेप आगे जाता है, उसके बाद 3 स्टेप पीछे आता है। कितना रह गया उसका स्टेप, 2 स्टेप ही मूव किया ना उसने, फॉलोड बाय, एंड ये फॉलोड बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ऐसे ही मतलब चलते रहा। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, एक स्टेप में 1 मीटर रहता है, एंड टेक्स 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड लगता है 1 मीटर कवर करने के लिए। एंड देयर इज ए पीट ऑन दी रोड, पीट मतलब एक गड्ढा वगैरह है ऑन दी रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से 11 मीटर दूर में एक पिट होल है, तो वो उसमें जाके गिर जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा वो 11 मीटर कवर करने के लिए टोटल, वो पूछा है तुमको, ठीक है। देखो पहले इधर से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग कितना हो गया, कितना मीटर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये फाइनल है, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। अभी देखो क्या दिया हुआ है, लॉजिक है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वो 5 स्टेप जाएगा, तुम टाइम को नोट डाउन करने पड़ेगा तुमको पहले, ठीक है। और एक एक स्टेप कितना है, ये वाला स्टेप कितना है, 1 मीटर करके है, ये सब 1 मीटर करके है, इसलिए 11 मीटर से है। ओके देखो इधर से, इधर में देखो पहले, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप इधर तक आ गया। उसके बाद फिर से जाएगा एक स्टेप, 2 स्टेप पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, 5 स्टेप फॉरवर्ड हो गया ना, उसके बाद पीछे जाएगा, देखो देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप इधर में आके रुक गया। तो टोटल कितना स्टेप वो मूव किया, 8 स्टेप, मतलब कितना, 8 सेकेंड नोट डाउन करके रख दो, टाइम निकालना है तुमको, ठीक है। टाइम को नोट डाउन करके रख दो, 8 सेकेंड। उसके बाद फिर से वो जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, जो मार्क करके दिया ना मैंने, डार्क वाला, यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको रैप कर देता हूँ मैं, तो कॉन्फ्यूज हो जाएगा तुम लोग, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 इधर में आके पहुंच गया, फिर से बैकवर्ड 1 2 3 इधर में आके पहुंच गया, तो कितना सेकंड लगा, फिर से 8 सेकंड, 8 सेकंड में कहाँ आके पहुंचा वो, फाइनल इस पोजीशन में आया फिर से, ठीक है। मतलब ये वाला पोजीशन अभी न्यू पोजीशन है ये उसका, है ना। न्यू पोजीशन कौन सा है, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर से हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ओहो, और 2 स्टेप था वो गिर जाता है, ठीक है। फिर से रिवर्स जाना है, 1 2 3 इधर में आ गया, तो कितना स्टेप, फिर से 8 स्टेप मूव कर गया, फाइनली वो कहाँ पे है, इस पॉइंट में है, इसको रख कर दो, ठीक है। फाइनली कौन सा पोजीशन में, इधर इधर में है वो, यहाँ से और स्टेप जाएगा आगे, 1 2 3 4 5 गिर गया वो, ठीक है, गड्ढे में गिर गया, हो गया तुम्हारा, कितना गया, 5 स्टेप,
5 से आंसर आ जाएगा, देखना 8 इंटू 3 प्लस 5 कितना आया, 24 प्लस 5 29 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। 29 लॉजिक का क्वेश्चन है, हाँ इसमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car runs at a constant speed in a circular track of radius 10 meter taking 6.28 second on each lap। मतलब एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको 6.28 सेकंड लगा। डिटायर द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इन ईच कंप्लीट लैप। ओके ओके, मतलब एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है, उसका सर्कल का रेडियस हम लोग का कितना है, सर्कल का रेडियस हम लोग को दिया है 10 मीटर, ठीक है। वो सपोज मान लो कि एक्स पॉइंट से स्टार्ट किया, a car runs at constant speed in a circular track of radius इतना takes 6.2 सेकंड, मतलब ये पूरा जर्नी कवर करने के लिए x से सरकमफरेंस होके सर्कल का x में आने के लिए उसको कितना 6.28 सेकंड लगा, 6.28 सेकंड लगा पूरा सरकमफरेंस में। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इन ईच कंप्लीट लैप, मतलब x से फिर से x में आने के लिए उसको कितना क्या लगेगा, एवरेज वेलोसिटी लगेगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा टोटल टाइम तो हम लोग का हो ही गया 6.28, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो आंसर कितना आएगा 0। मतलब एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा आंसर 2 हो सकता है, 2 आएगा, 3 और 4 में से आएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। जीरो सॉरी सॉरी, तुम्हारा वेलोसिटी है ना, तुम्हारा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, मतलब तुम्हारा आंसर 2 और 3 में से कोई एक आएगा। अब देखो स्पीड इधर में पूरा जर्नी में क्या एवरेज स्पीड तुम्हारा 0 होगा, वो तो 0 होगा ही नहीं ना, कॉमन सेंस है, क्योंकि सरकमफरेंस लेना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम तो ठीक ही है 6.28 होगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 0 होगा क्या, पूरा सरकमफरेंस रहेगा ना, कितना 2 पाई इंटू कितना 10, और ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, आंसर तो पता ही लग रहा है कि 2 और 3 में से होगा, वेलोसिटी 0 0 है ये दोनों ऑप्शन में, और स्पीड तो 0 होने नहीं वाला, तो थर्ड नंबर स्पीड तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा 2। सिंपल सा लॉजिक है, इससे तुमको तुम्हारा आंसर इधर में ही आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा, सिंपल सा बात है, नहीं आएगा, स्पीड तो 0 नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moving in a straight line covers half distance with a speed 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक डिस्टेंस है तुम्हारा, हाफ डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस मान लेते डी, हाफ डिस्टेंस हम लोग का कवर किया कितना 12 मीटर पर सेकेंड में, 12 मीटर पर सेकेंड कवर किया, एंड अदर हाफ डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब d/2 डिस्टेंस और इधर में हम लोग का है d/2 डिस्टेंस। नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ है d/2 डिस्टेंस, वो कवर किया कितना में 2 इक्वल टाइम इंटरवल। तो इक्वल टाइम इंटरवल मतलब इधर से मान लो फर्स्ट हाफ पे हम लोग का टाइम लगा टी, सेकेंड हाफ में टाइम लगा हम लोग का, सपोज मान लो तुम्हारा फर्स्ट हाफ में t1 लगा, सेकेंड हाफ में t2 लगा। जो सेकेंड हाफ है उसका दो पार्ट में टाइम को डिवाइड किया, t2/2 और t2/2। पहला t2/2 टाइम में उसका वेलोसिटी, थोड़ा डिसिप्लिन से लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ा देता हूँ ये वाला, t2 बाई ये डिस्टेंस है d/2 और टाइम है t2, t/2 डिस्टेंस हम लोग का टाइम गया कितना स्पीड से 4.5 मीटर पर सेकंड से, मान लो कुछ डिस्टेंस कवर किया, ये तुमको नहीं पता कुछ डिस्टेंस कवर करेगा सपोज, और नेक्स्ट t2/2 डिस्टेंस कवर किया कितना 7.5 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए तुम एक तो मेथड है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में सिखा देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में सिखा देता हूँ, ठीक है, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखना कि अगर टाइम इक्वली डिवाइड है, इफ टाइम इक्वली डिवाइडेड देन एवरेज स्पीड आएगा, अगर टाइम इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड, देन वी एवरेज इक्वल टू होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 इक्वल टाइम पे, अगर 3 इक्वल टाइम पे हुआ तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना वेलोसिटी है ये 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग ये वाला हाफ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वाला हाफ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इक्वली टाइम डिवाइडेड है ना सेकेंड हाफ में। तो कितना आया हम लोग का 7.5 0.5 11 12, तो कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड आंसर। मतलब इसको हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं ना, अभी रीड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अभी हम लोग का कितना आ गया, रीड्रॉ कर सकते हैं d/2 t1 ये है तो 12 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड हाफ हम लोग का है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, d/2 t2।
ठीक है, मैं थोड़ा स्पेस निकाल लेता हूँ। यहाँ तक तो लिख लिया तुम लोगों ने शायद। खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, अगर होता है तो उसके बाद ही वीडियो देखना। अगर ज़रूरत नहीं पड़ता तो और अच्छा है वीडियो नहीं देखने का, खुद से अगर सॉल्व हो जाता है। अच्छा ठीक है, अभी देखो और एक शॉर्ट ट्रिक है, ये भी इसको भी याद रखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं कॉन्सेप्ट दे दूंगा। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर वेलोसिटी को डिस्टेंस इक्वली डिवाइड है, डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड। अच्छा, ये इक्वली डिवाइडेड के लिए होगा, ठीक है। अगर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 2/3 दिया तब नहीं होगा, तब तुमको जनरली कन्वेंशनली करना पड़ेगा। वो भी कोई क्वेश्चन में मैं दिखा दूंगा अगर आएगा तो, इक्वली डिवाइडेड। लेकिन नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इक्वली डिवाइडेड आता है, मतलब कभी कभी 1/3 आ सकता है। इक्वली डिवाइडेड हुआ तो तुम्हारा एवरेज आता है, वी एवरेज या तो स्पीड एवरेज आता है 2 × V1 × V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2, मतलब 2 × 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6 कितना आएगा, 2 × 12 × 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 18 जा 3 3 4, तुम्हारा फाइनल आंसर आया 8 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा इसका कॉन्सेप्ट तुम लोग लिख लो, मैं इसको रब कर दूंगा अगर किसी से अभी बोर्ड को थोड़ा क्लीन करके मैं दिखाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट तुम लोग लिख लेना, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड के लिए। आंसर तो आ गया ना, लिख लिया ना सब लोगों ने? ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर जरूरत पड़ा तो, इतना टफ क्वेश्चन है नहीं वैसे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक सीख लेना बस, थोड़ा क्विक आंसर आएगा तब। ठीक है, देखो, टाइम इक्वली डिवाइडेड, डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड। अगर टू पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये आएगा वी एवरेज इक्वल टू V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2। और इधर में टू पार्ट में अगर डिवाइड किया तो तुम लोग का इक्वली डिवाइड किया डिस्टेंस को, तो वी एवरेज इक्वल टू 2 × V1 × V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2। अगर थ्री पार्ट में डिवाइड किया, इक्वली टाइम को थ्री पार्ट में डिवाइड किया, मतलब T/3 T/3 T/3, तो तुम्हारा वेलोसिटी आएगा V1 + V2 + V3। एरिथमेटिक मीन होता है ये। और थर्ड थ्री पार्ट में अगर तुम लोग को डिवाइड किया, वी एवरेज डिस्टेंस को डिवाइड किया, तो आएगा 3 × V1 × V2 × V3, V1 V2 + V2 V3 + V3 V1, ऐसे आएगा तुम्हारा। अगर फोर्थ पार्ट में भी डिवाइड किया वैसे ही आएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग का, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल मूव्स। ओके, ये सिंपल सा बात है, सर्कुलर पार्ट में तो नहीं होता। सिंपल सा बात है, अगर कोई चीज़, ये नोट कर लेना, एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगर कोई चीज़, कोई पार्टिकल, पी पार्टिकल या कोई भी बॉडी, गाड़ी, कुछ भी, अगर सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर इसका आंसर है तुम्हारा सेम डायरेक्शन, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। इसका आंसर है इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाने से होता है ये। ठीक है, कार्ट पाथ में क्या होता है तुम लोग का, कार्ट पाथ में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है ना। तो वेलोसिटी कब चेंज होता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है। स्पीड तो सेम ही रह जाएगा एक कार्ट पाथ में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तभी हम लोग का एवरेज मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम आता है। ये नोट डाउन करके रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज वेलोसिटी v। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा अलग आ गया ना, अभी सीखने को मिलेगा तुम लोगों को, देखना। वन ए बॉडी कवर्स थर्ड वन थर्ड ऑफ द 1/3 of the distance with velocity v1 and second 1/3 and second 1/3 मतलब 1/3 into v2 and last 1/3। ओ अच्छा, इक्वली डिस्टेंस को डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में, कितना, v3। ये तो सिंपल सा है, अभी तो थोड़ी देर पहले सिखा दिया ना। कितना आएगा आंसर इसका, इसका आंसर 2 आएगा, सिंपल सा बात है। इक्वली डिस्टेंस डिवाइडेड, डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड into थ्री पार्ट्स, आंसर आएगा 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, सिंपल सा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस डी ऑन ए स्ट्रेट रोड इन 2 hours एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन द नेक्स्ट 3 hours। एक कार ट्रेवल किया है कितना, बस डॉगर दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस कवर किया इन स्ट्रेट पाथ इन 2 hours। फॉरवर्ड वो गया कितना, 2 hours में कवर, 2 hours लगा उसको, डी डिस्टेंस कवर करने के उसको 2 hours लगा। उसके बाद वहां से वो रिटर्न हुआ, ये वाला फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन से वो रिटर्न हो गया गाड़ी, ठीक है रिटर्न हुआ रोड में, रिटर्न होके नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, एक्स पॉइंट से स्टार्ट किया, वाई पॉइंट में गया, फिर से वाई से एक्स में आ गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, कितना टाइम लगा आने के लिए उसको 3 hours लगा, मतलब उसका वेलोसिटी तो कम है ना, ठीक है। एवरेज स्पीड पूछा है, वी एवरेज इक्वल टू कितना होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, याद रखना है इसको, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा तुम्हारा 2d, जाने के लिए लगा डी डिस्टेंस, आने के लिए डी डिस्टेंस, तो 2d। और टोटल टाइम कितना है, टाइम हम लोग का लगा 2 प्लस 3 आवर। ये तो इजी क्वेश्चन है, 2d/5, ये तो बकवास क्वेश्चन है, लगता है तुम लोगों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन तो ये नहीं टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। यस, 2 will be the correct answer. Next question. If train covers first half of the distance between two stations, first half to distance with a speed 40 km and other half with 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक ट्रेन एक पूरा डिस्टेंस है तुम्हारा, मान लो डी डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ में दैट मीन्स d/2 वो गया कितना 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट d/2 वो गया 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इक्वली डिवाइड, डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड, सिंपल सा आंसर है, इक्वली डिवाइडेड है, 2 इंटू v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 मार दो, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 40 प्लस 60, सिंपल सा कैलकुलेशन, इसके बाद तो काम ही खत्म, 100, 0 0 कैंसिल कर दो, 2 इंटू 4 इंटू 6 कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A car moves in road 1/3 of the certain distance with and rest, ओके ये वाला था इंटरेस्टिंग। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कितना वेलोसिटी में गया, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट कितना 2/3 डिस्टेंस कितना में जाएगा, 2/3 डिस्टेंस कितना में गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पूछा है, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अच्छा देखो ये वाला उस फॉर्मूला से नहीं आएगा, क्योंकि 1/3 दिया, इक्वली डिवाइड नहीं किया, 1/3 दिया तो 2/3 दिया है ना, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है हम लोग का 20 इंटू 1/3d, नहीं टोटल डिस्टेंस हम लोग का डी है, सॉरी 1/3d प्लस 2/3d, कितना डी आएगा। टोटल टाइम सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1/3 के लिए t1 टाइम लगा, 2/3 के लिए t2 लगा, तो t1 प्लस t2, ऊपर में अगर डिस्टेंस दी, और हम लोग को कितना पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो t1 डिस्टेंस कितना था हम लोग का 1/3, t1 इक्वल टू हम लोग का आएगा d/3, और v1 कितना है 20, ठीक है 20, तो कितना आया हम लोग का ये d/60, और इधर में नेक्स्ट केस में आएगा हम लोग का कितना, निकाल लेते हैं नेक्स्ट हाफ के लिए, ये तो पता लग गया ना, फर्स्ट हाफ के लिए हम लोग का t1, t2 निकालते हैं, t2 इक्वल टू वेलोसिटी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, 2d/3 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आएगा 2d डिवाइडेड बाय 180, दैट मीन्स d/90, d/90 करो, d को कॉमन लो, 1/60 प्लस 1/90, d कैंसिल, एलसीएम निकालो, ठीक है 60 90 का एलसीएम कितना होगा, 60 90 का एलसीएम 2 से करो 30, है ना, ये तो इतना है, ये सब तो करने का जरूरत नहीं है, रुको एक सेकंड कर ही देता हूँ, पता नहीं किस किस को आता है किस किस को नहीं आता, करके देना पड़ेगा। देखो 15 से किया, 15 10 करो, 10 6 आएगा 9 आएगा, 3 से करो 2 आएगा 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 3 180 आएगा इसका, इधर में 63 प्लस
2 1 180 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा तुम लोग आंसर? 180 डिवाइडेड बाई 5 36 आएगा क्या? 36 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर 4। Okay, let's move on to next question. 16 17 number question. We'll end the video up to question number 20. Then in the next video you will get the next half. That means your next upcoming videos will be on after 20 questions number 20. A particle moves in east direction. ईस्ट की तरफ जा रहा है वो, ये तो सबको पता होना पड़ेगा। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है 15 किलोमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। एंड नॉर्थवर्ड, उसके बाद नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड 8 सेकेंड में जा रहा है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। ये तो एक सिमिलर क्वेश्चन देखा था मैंने ना, सिमिलर क्वेश्चन आया था। एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा? टाइम तो हम लोग को मालूम ही है, 2 + 8, ये तो आ गया 10। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल कितना? यहाँ से निकाल दो। वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। दैट मीन्स 15 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 8 30 प्लस 70/10, आंसर 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। ये याद रखना है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होता है या तो इक्वल होगा। तो क्या पूछा है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। दैट मीन्स उसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो कितना आया? इसको थोड़ा डिसिप्लिन से लिखो। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस is less than equal to 1, less than, equal or less than 1. Option number 3. Next, question number 19. A particle moves in a straight line 20 seconds with a velocity 3 meter per second and moves with a velocity 4 meter per second another 20 seconds and finally moves with 5 meter per second next 20 seconds. Straight line में क्या है? पहला 3 meter per second for 20 seconds, next 4 meter per second 20 seconds, next 5 meter per second for 20 seconds. Average velocity V average total displacement, total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम तो हम लोग को मालूम ही है, 20 + 20 + 20, और हम लोग को निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है ना। तो 3 × 20 + 4 × 20 एंड 5। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तुम लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया था। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 60 + 80 + 100 डिवाइडेड बाय 60। तो कितना है ये? 240 डिवाइडेड बाय 60, 4 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर। Last question of the session. An object travel 10 km at a speed 10 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकेंड 10 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर मूव किया कितना में? 100 मीटर पर सेकेंड में। एंड नेक्स्ट अनदर 10 किलोमीटर इन 50 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी सिंपल है, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। स्पीड बोला है तो डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हम लोग का? हम लोग को देखो, अभी इधर में मीटर पर सेकेंड 1 किलोमीटर में दिया हुआ है, ये सब ध्यान से देखना, ठीक है। टाइम तो हम लोग को गिवन नहीं दिया है ना। डिस्टेंस कितना है? 10 10, दैट मीन्स 10 + 10 किलोमीटर। और टाइम सपोज इधर में हम लोग का टाइम लगा t1, सेकेंड हाफ में हम लोग का t2, t1 + t2। 20 किलोमीटर 20 × 1000 मीटर कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, t1 इक्वल टू कितना होगा? t1 इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 10 × 1000 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है? 100। t2 कितना होगा हम लोग का? फिर से 50 मीटर पर 10 किलोमीटर 10 × 1000 डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितना आया हम लोग का? 0 0 0 0 कैंसिल, इधर में आएगा 100, t1 आएगा 100
42 आएगा, 10 ना, 100, 10 into 100 divided by 5 to 200, ओके 200, तो कितना आया ये 100, नीचे हो गया 300, ऊपर हो गया तुम्हारा सॉरी 20 इंटू 1000, नीचे हो गया तुम्हारा 300, राइट, 0000, रुको थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ, 300, 0 कैंसिल, ऊपर में आ गया 200 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स योर 66.67 आएगा, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 100 को 3 पार्ट में डिवाइड करो कितना 33.3 आएगा ना, 200 है तो कितना, डबल कर दो यार 66.67। ओके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, होप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट डाउन करना कुछ, अगर तुम लोग का अगर और इसमें ऐड करना है, और क्वेश्चन ऐड करना है कि एक सेशन में तुम लोग को कितना क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए, वो सब थोड़ा कमेंट डाउन करके लिखना, उस हिसाब से बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग पीसफुली, थैंक यू so much, and we'll see you in the next class. Okay, thank you so much.